Gauss's law. What is Gauss's law? Gauss's law basically provides the relationship between the electric flux passing through any surface and the charge enclosed within that surface. This is considered to be one of the fundamental laws of electromagnetism, and this law can be completely understood if we remember our concept of electric flux. What electric flux is? We can say that electric flux is the flow of electric field through any surface, like the flow of water through a water pipe, or the light energy spreading in our rooms. Although in this case, the electric field lines are not moving, they are stationary. Now, we can represent the electric flux with the with the Greek letter pi, and as we are talking about electric flux, so we will symbolize pi and we will write E and its subscript in order to represent electric flux. Now, electric flux can be mathematically explained or can be mathematically defined in the equation del phi is equal to E dot del A, where E and del A are the vector quantities, and there is the dot product of two vector quantities gives us a scalar quantity. So from this we can say our electric flux is a scalar quantity. Now, in order to calculate the magnitude of electric flux, let us simplify a relation E dot del A, and that becomes E del A cos of theta. Now, what is cos of theta? Theta basically is the angle between E and del A. E is your electric field intensity and the del A is your vector area. Now, we can say flux can be positive and flux can be negative. Flux can be positive if the value of theta is less than 90. In this case, we can say the flux is going out of the surface, and if the value of theta is greater than 90, we can say that the flux is negative and the flux is entering in the surface. As the figure shows, there is a there is an electric field, and the electric field is represented with the blue arrows, and there is an irregular or asymmetric Gaussian surface placed in the electric field lines. This surface has different directions of electric intensity and different directions of vector area. All these direction of electric field intensity and vector area across the total surface are is also represented in the figures in the figure. Now, as we have discussed in the previous lecture, that flux can pass through the plane through a surface element which is plane. If now considering if the surface element is not plane, it's a curved surface, then how can we calculate the flux on that surface? We will divide our surface into small regions with the area dA, like here shown in this diagram. This blue dot is your small area, a part of your whole bigger surface. And then what will we do after after dividing our surface into small regions? We will find the flux through each area, and the flux can be calculated by using the equation d phi is equal to dA cos of theta, and we can obtain the flux over the whole surface by integrating the whole surface. The final equation is the equation we can use to find out the flux for a curved surface. Now, if
in case our surface is a closed surface. Previously we have seen that there is a sheet in this diagram. There is a sheet, or we can say that a rectangular sheet, but it's not a plane surface. But if the surface is a closed loop or a closed sphere, we can say, if you take the example of a ball, if the surface is a closed loop, then what will be the form of the equation of electric flux? We will do the same processes as discussed in the previous slide. We will divide our surface into the small area elements represented by dA, and then we will evaluate the value of flux over each surface, and then we will integrate the surface. But in this case we will not integrate the surface as a line integral, we will integrate the surface as a surface integral, whole surface. So we can the equation, so our equation gets the form of this. Now moving on towards the closed surfaces. अगर आपके पास कोई भी सरफेस, कोई भी ऐसी सरफेस मौजूद है जो कि क्लोज सरफेस है, तो ऐसे क्लोज सरफेस के अंदर आपके पास फ्लक्स किस तरह से बिहेव करेगा, तो फ्लक्स का बिहेवियर को यहाँ पर हम इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. You can see a surface named S and a point charge Q, a positive charge Q. The electric field lines are passing through this surface S. अब यहाँ पर आपके पास बिहेवियर क्या होगा फ्लक्स का, तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव. there are two cases. फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव एंड फ्लक्स कैन बी नेगेटिव. अब फ्लक्स पॉजिटिव कब है और फ्लक्स नेगेटिव कब है? वो कहता है कि if the electric field lines leave the enclosed surface, enclosed volume, then the flux is positive. At the outer boundary of this closed surface we can say कि हमारा जो फ्लक्स है उसकी पॉजिटिव वैल्यू है. और अगर हम बात करते हैं कि आपके पास फ्लक्स जो है वो नेगेटिव कब बिहेव करेगा, फ्लक्स विल बिहेव नेगेटिव इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इनटू द सरफेस. अब ये जो आपकी नीचे वाली बाउंड्री है, इस नीचे वाली बाउंड्री से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एंटर कर रहा है, और ऊपर वाली बाउंड्री से क्या कर रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव कर रहा है. तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं कि आपके पास इस गॉसियन इस सरफेस के अंदर की तरफ आपके पास फ्लक्स का बिहेवियर नेगेटिव है और बाहर की तरफ आपके पास फ्लक्स का बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव है. तो अगर हम टोटल सरफेस की बात करते हैं तो चार्ज, इफ़ द चार्ज इज़ आउटसाइड द क्लोज सरफेस. अब यहाँ पर आपने ये जहन में रखना है कि जो प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज है इट ऑल्सो इफेक्ट्स द फ्लक्स विद इन द सरफेस. अगर आपके पास ये चार्ज जो है इसको आप सरफेस से बाहर रखते हैं तो ऐसी सूरत में इस सरफेस के अंदर एंटर होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस सरफेस को लीव करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी तादाद सेम होगी और नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस जो है वो ज़ीरो होगा. लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज क्यू था ये इस सरफेस के अंदर कहीं पड़ा हुआ था, तो अब इस सरफेस के अंदर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बनेगी आपके पास, लेकिन इस सरफेस से के अंदर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बन रही हैं आपके पास, लेकिन इस सरफेस से अंदर एंटर होने वाली फील्ड लाइंस कोई नहीं आएगी. तो ऐसी सूरत में आपके पास कोई ना कोई नेट चार्ज इस सरफेस के ऊपर क्रिएट होगा. लेकिन अगर आप बात करेंगे कि ओवरऑल अगर आपका चार्ज जो सरफेस से बाहर पड़ा है तो फिर आपके पास सरफेस के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं आएगा. नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ बेसिकली क्या था, अभी हमने बात की कि गॉसेस लॉ जो है आपके पास प्रोवाइड करता है गॉसेस लॉ क्या करता है, गॉसेस लॉ आपके पास प्रोवाइड करता है एक रिलेशनशिप. किन दो चीज़ों के दरमियान आपके पास रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द चार्ज इनक्लोज्ड. अब ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली आपके पास फुल एंड फाइनल इक्वेशन ऑफ योर गॉसेस लॉ है, जिसमें ये कहता है फाई
इफ़ द सरफेस फाई इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम पहले से यहाँ फाई के लिए रिलेशन पढ़ कर आए हैं कि फाई जो है आपके पास अगर कोई क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है तो उस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए फाई जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सरफेस इंटेग्रल ऑफ डी फाई से, और अगर हम डी फाई की जगह वी कैन राइट ई डॉट डी ए। सिमिलरली ये बेसिकली ये जो तीनों आपके पास दिस वन एंड दिस वन, ऑल थ्री आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फाई। और फाई बेसिकली क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस इन द सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास, बेसिकली एप्सिलॉन नॉट जो है आपके पास ये relative permittivity of the medium है। अब हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू रहेगा आपके पास, लेकिन इसके लिए आपने ये जहन में रखना है कि अगर इट कैन गिव गुड रिजल्ट्स व्हेन the shape of the Gaussian surface is symmetric. If it's not it's asymmetric or it's not symmetric, it will give results but that are not the very easy or very, those results are not very easy to evaluate. अ क्लोज सरफेस, हम ये भी बात करते हैं कि जब भी हम लोग गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई इमेजिनरी सरफेस हमें रिक्वायर्ड होगी, और वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है उसको हम हमेशा गॉसेस लॉ का नाम देंगे, गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन जो हम लोग इस अपनी जो रेफरेंस बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर लेकर चलेंगे तो आपकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है वो यहाँ पर ये दी गई है, और it says that epsilon naught phi is equal to q enclosed by the Gaussian surface। और फाई की जगह अगर हम लोग सरफेस इंटेग्रल की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। नाउ एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम अपनी गॉसेस लॉ के लिए, और गॉसेस लॉ की एग्जाम्पल में वो कहता है कि एक अदद आप डाइपोल कंसिडर करें। अब ये डाइपोल क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, व्हाट इज़ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन बेसिकली क्या थी, हमने कहा था कि आपके पास पोल्स, फॉर्मेशन ऑफ पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन है। अगर आप एक अदद ऐसा यूनिट कर ले लें जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये एक नेगेटिव चार्ज किसी डिस्टेंस पर अगर मौजूद हैं तो दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज़ नोन एज अ डाइपोल। तब हमने क्या किया, एक अदद डाइपोल लिया है, बेसिकली क्या लिया है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया है, और ये डायग्राम जो है आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता रही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, किस तरह से हैं। अब वो कहता है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनके ऊपर हम क्या करते हैं, हम कुछ रीजन्स को, कुछ गॉसियन सरफेसेस को कंसिडर कर लेते हैं। अब ये गॉसियन सरफेसेस क्या हैं वो आपको डायग्राम में अपनी क्लियर नज़र आ रही होंगी। देयर आर 4 गॉसियन सरफेसेस। फर्स्ट गॉसियन सरफेस को कहते हैं, हमने नाम दिया हुआ है S1 का, और ये किसको इंक्लोज कर रही है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज को इंक्लोज कर रही है। सेकेंड गॉसियन सरफेस को हमने नाम दिया हुआ है S2 का, और ये आपके पास इंक्लोज कर रही है चार्ज, नेगेटिव चार्ज को। देन हमने एक और गॉसियन सरफेस ली है S3 जो कि आपके पास किसी भी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रही, और फाइनल हमने एक और सरफेस ली है S4 दैट कम्प्लीटली इनक्लोजेस द होल डाइपोल विद इन इटसेल्फ। अब हम देखते हैं कि इन तमाम गॉसियन सरफेसेस के अक्रॉस फ्लक्स का क्या बिहेवियर है, ये गॉसेस लॉ किस तरह से वैलिड है। तो गॉसेस लॉ बेसिकली क्या है आपके पास, अगर आप कहें तो ये फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो यानी कि क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बेसिकली अगर हमें फ्लक्स का बिहेवियर समझ आ जाएगा तो हम गॉसेस लॉ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो पहले हम कंसिडर करते हैं अपनी गॉसियन सरफेस S1 विच इंक्लूजेस द पॉजिटिव चार्ज।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चार्ज सरफेस, इस सरफेस से, इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी कहाँ जा रही हैं, आउटवर्ड्स जा रही हैं। तो यहाँ पर ये हम बात कर सकते हैं कि द फ्लक्स फॉर दिस रीजन, फॉर दिस गॉसियन सरफेस इज़ पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम सरफेस 2 की बात करते हैं, गॉसियन सरफेस S2 की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास नज़र आ रहा होगा कि आपका जो चार्ज है वो चार्ज नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी आपके पास वो डेफिनेटली इनवर्ड्स होगी। और जब हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड्स है तो ऐसे रीजन में फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट अगर आप थर्ड लाइन की बात करें, थर्ड सरफेस की बात करते हैं, एज नो फ्लक्स इनक्लोजेस दिस गॉसियन सरफेस, तो हम अभी बात करके आए हैं कि अगर किसी सरफेस के अंदर कोई फ्लक्स नहीं है, कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, तो द सरफेस ऑन द अपर पार्ट, सरफेस के अपर पार्ट के ऊपर हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और लोअर पार्ट के ऊपर आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बोथ द वैल्यूज़ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जब ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो आपके पास क्या होगा, इस सरफेस के लिए, सरफेस S3 के लिए फ्लक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो, नेट फ्लक्स जो है आपके पास थ्रू दिस सरफेस ज़ीरो होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं S4 की। अब S4 के लिए क्या है, S4 इंक्लूजेस टू चार्जेस। और डाइपोल, हमेशा ये जहन में रखिएगा, डाइपोल इज़ क्रिएटेड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस इज़ सेम। अगर एक भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। डाइपोल के लिए ये कंडीशन लाजमी है कि आपके पास दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। इन दिस केस हमारे पास अगर एक डाइपोल है तो डेफिनेटली ये जो चार्ज प्लस और ये चार्ज जो माइनस है दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और जो सरफेस S4 है आपके पास, इसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ करंट जो है वो बेसिक, आपके पास अगर हम यहाँ पर नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज क्या होगा आपके पास, नेट चार्ज यहाँ हो जाएगा ज़ीरो। क्योंकि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड +1 कूलम है तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी आपके पास -1 कूलम है। बोथ ऑफ दीज विल कैंसल ईच अदर। सो नेट जो आपके पास आएगा, नेट चार्ज की अगर हम बात करेंगे, नेट चार्ज होगा ज़ीरो। और जब किसी सरफेस के अंदर नेट चार्ज ज़ीरो होता है तो फिर बिहेवियर हम किस तरह से स्टडी करते हैं, हम कहते हैं कि एट द अपर पॉइंट उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं और एट द लोअर पॉइंट उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो ऐसी सूरत में बोथ द फ्लक्सेस विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट एंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी ज़ीरो। नाउ moving on, now if we want to calculate the electric field, electric field produced by a point charge using Gauss's law, or in other words we can say कि अगर हम लोग गॉसेस लॉ और कूलम्स लॉ के दरमियान एक अदद मैथमेटिकल रिलेशन निकालना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम गॉसेस लॉ की मदद से कूलम्स लॉ को डिराइव करने जा रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, डायग्राम में हमने क्या किया है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिया है। और ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या कहता है कि आपके पास एक अदद पॉजिटिव चार्ज Q है। ये पॉजिटिव चार्ज Q, अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज Q है और इस पॉजिटिव चार्ज Q के अराउंड आप एक अदद सिमेट्रिक, अब यहाँ ये वर्ड जहन में रखिएगा, आप एक अदद गॉसियन सरफेस ले रहे हैं और ये गॉसियन सरफेस जो है ये सिमेट्रिक है। तो अगर आपकी जो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है तो इस सरफेस के ऊपर आप सेंटर चार्ज पार्टिकल Q से किसी भी डिस्टेंस पर चले जाएंगे, द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस विल बी सेम। आप एक अदद स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो गॉसियन सरफेस है वो एक अदद स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो R है और इसके सेंटर पर हमारे पास जो है वो चार्ज Q पड़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ें जहन में रखनी है हमने कि द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज from the Gaussian surface is the same for each point in the surface। तो जी
इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ये जो चार्ज क्यू है इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ योर गॉसियन सरफेस। अब जब ये गॉसियन सरफेस के सेंटर पर मौजूद है और हमारे पास सरफेस जो है वो सिमेट्रिक है, तो वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस। फॉर द होल सरफेस आपके पास जो है ई की वैल्यू सेम रहेगी। देन अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए के। अब ई और डी ए बेसिक, अब हमें यहाँ पर डी ए ड्रॉ करना है। वेक्टर डी ए क्या है, हम अपनी गॉसियन सरफेस को, अभी आपको याद होगा हमने कहा था कि हमारे पास अपनी गॉसियन सरफेस को हम लोग एन एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा, चूँकि हमारे पास थ्रू आउट द सरफेस फील्ड की डायरेक्शन सेम है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो बेसिकली हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो थ्रू आउट द सरफेस आपके पास फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो जब फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी तो आप एक एलिमेंट के लिए निकालें या आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए निकालें, आपके पास आंसर सेम आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अपने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए अपनी फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें डी ए चाहिए होगा। डी ए अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि आपके पास होता है वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो सरफेस है जिसके अलोंग आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, उसके अलोंग अगर आप एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो दैट परपेंडिकुलर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एरिया। और इन दिस स्पेशल केस हमारे पास डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि वेक्टर एरिया और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। सो वी कैन से द एंगल बिटवीन डी ए एंड ई इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम चूँकि फ्लक्स निकालने जा रहे थे तो आपने क्या किया, सबसे पहले फ्लक्स के लिए इक्वेशन लिख ली। और फ्लक्स की इक्वेशन क्या कहती है, फ्लक्स की इक्वेशन आपके पास कहती है कि डी फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और ये बराबर है सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ई ए और ई डी ए। और ई डी ए, ई डॉट डी ए अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास रिलेशन बनता है जिसमें कॉस थीटा आपके पास 1 के बराबर आता है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। और अब यहाँ पे हमने बात की थी कि योर ई इज़ ए कांस्टेंट, तो हम इस कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अब ये जो है आपके पास इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल, और ये आपके पास ये इंटीग्रल और ये डी जो है बोथ विल कैंसिल ईच अदर, और इसके अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एरिया बच जाएगा। और जब एरिया बच जाएगा तो एरिया किस चीज़ का एरिया था, हमने अपनी गॉसियन सरफेस के लिए जो एरिया लिया हुआ है ये वो एरिया है। तो दैट एरिया फॉर द गॉसियन सरफेस इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की जगह हम लोग क्या, ए की जगह हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास बेसिकली फ्लक्स फॉर योर गॉसियन सरफेस निकल आया। अब जब आपके पास फ्लक्स फॉर द गॉसियन सरफेस निकल आया तो अब हम क्या करते हैं, हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। और कूलम बेसिकली हमारा काम क्या था, हम कूलम्स लॉ की मदद से हम गॉसेस लॉ की मदद से कूलम्स लॉ को वैल्यूएट करने जा रहे थे। तो अब हमने क्या किया, इस गॉसेस लॉ को लिखा। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ई डॉट डी ए की जगह पर ई 4 पाई आर स्क्वायर लिखना था। और ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन को रीअरेंज करने से आपके पास ये फॉर्म बनेगी, और इसको हम फर्दर रीअरेंज करेंगे तो बेसिकली दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी we have already evaluated with the help of Coulomb's law. We can say we have evaluated Coulomb's law from Gauss's law. Next, moving on towards the discussion, क्या आपके पास जो कूलम लॉ है वो ज़्यादा फंडामेंटल लॉ है, या कूलम लॉ ही इज कूलम लॉ एंड गॉस लॉ, एज वी हैव discussed in the starting that Gauss's law is one of the fundamental laws of electromagnetism. क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कूलम्स लॉ फंडामेंटल है या गॉसेस लॉ फंडामेंटल है?
तो वी कैन से हम लोग कूलम्स लॉ की मदद से गॉसेस लॉ को भी निकाल सकते हैं। हमने गॉसेस लॉ की मदद से कूलम्स लॉ को निकाल कर देख लिया है। हम कूलम्स लॉ की मदद से गॉसेस लॉ को भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट वी कैन डिराइव बोथ दीज लॉज फ्रॉम ईच अदर। लेकिन कूलम्स लॉ जो है वो हमारे पास, अगर आपके पास जो प्रॉब्लम है उसमें आप सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज को डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो गॉसेस लॉ कैन बी मोर इफेक्टिव एंड मोर हेल्पफुल देन द कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ के अंदर एक प्रॉब्लम है कि गॉसेस लॉ जो है वो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता इनसाइड द गॉसियन सरफेसेस। अच्छा जी, अब हम कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ की मदद से किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा स्केच यहाँ पर उसने बनाया हुआ है। कहता है सबसे पहले क्या कीजिए, सिलेक्ट अ गॉसियन सरफेस विद द सिमेट्री दैट मैचेस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने कोशिश करनी है कि जो भी गॉसियन सरफेस आप कंसिडर करेंगे वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक हो, और सिमेट्रिक होने के साथ साथ इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो तमाम के तमाम चार्जेस उस गॉसियन सरफेस के अंदर आने लाजमी हैं। यूज़ द सिमेट्री टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ई। अब आप सिमेट्री की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ ई निकालेंगे गॉसियन सरफेस की, और आप ई की डायरेक्शन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अब वहाँ पर फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर फ्लक्स जो आपके पास एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू योर फील्ड लाइंस है, तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। और अगर आपके पास एरिया जो है वो पैरेलल टू द फील्ड लाइंस है, तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यू विल एवेलुएट द सरफेस इंटेग्रल्स। सरफेस इंटेग्रल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यू विल डिटरमाइन द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और फिर आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस के लिए चार्ज निकालने के बाद आपकी जो गॉसेस लॉ की इक्वेशन थी उसमें से आप ई की वैल्यू को वैल्यूएट कर लेंगे, और ई की वैल्यू को वैल्यूएट करने के बाद बेसिकली आपने अपने लिए किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आपके पास ई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट दैट टू complete the to completely specify a vector, your answer must contain the information of the direction। आप जब भी ई कैलकुलेट करेंगे, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि ई जो है वो एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी जो है आप लोग इसके लिए डायरेक्शन का होना लाजमी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, यू मस्ट हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन।